চালটা দিয়ে দাও, চালটা বাস। একটা আলু দিয়ে দাও, ব্যাস ঠিক ঠিক আছে। मैं भी बहन है ना, देता हूँ। দাসপুরে পৌঁছে কেন্দ্রের জাহাজ মন্ত্রী শ্রী মনসুখ এল ম্যান্ডব্য সুজানগড় গ্রামের কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল ভিক্ষা করছেন। হঠাৎ গাড়ি কনভয় হাঁকিয়ে মন্ত্রী কেন ভিক্ষুক? উৎসুক আম জনতার ভিড়। তবে হিন্দিভাষী মন্ত্রী জানালেন, দেশ জুড়ে চলছে বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান। গ্রামের একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের থেকে তারা নিচ্ছেন এক মুঠো করে চাল। এভাবে নিজেরা ঋণী থাকছেন গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে। রাজ্যের ক্ষমতায় এলে সে ঋণ তারা শোধ করবেন। সেই গৃহ সম্পর্ক অভিযানে মন্ত্রী এল ম্যান্ডব্য আজ 16 জানুয়ারি দাসপুরের সুজানগড়ের গোপাল মাইতি, তাপস চক্রবর্তী, তারক দোলই ও রতন দোলইয়ের বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের থেকে এক মুঠো করে চাল ভিক্ষে নেন। অন্যদিকে বাড়ির মহিলারা তাদের অভাব অভিযোগ মন্ত্রীর কাছে জানান। মন্ত্রীর আশ্বাস, 21-এর নির্বাচনে জয় পেলেই সব অভাব মিটিয়ে দেবে বিজেপির সরকার। দাসপুর বাজারে আসার পথে বিজেপির সমর্থনে পদ্ম এঁকে দেওয়াল লিখন করেন জেলার নেতা অন্তরা ভট্টাচার্যকে সাথে নিয়ে। তারপর দাসপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মন্ত্রী। দেখুন দাসপুর থেকে ক্যামেরায় সন্তু বেড়ার সাথে সৌমেন মিশ্রের রিপোর্ট। আমি সৌমিনাক দত্ত, স্থানীয় সংবাদ, ঘাটাল। ভারত সরকারের মোদীজি মন্ত্রিসভার মন্ত্রী, তিনি এসছেন আপনার বাড়িতে আপনার সুখ দুঃখের কথা শুনতে। আমরা হচ্ছে খেটে খুটে খাই, আমার এখানে বাপের বাড়ি, काम करके खाते हैं हम लोग। আর হচ্ছে লোকের ওখানে রান্না করি, করে সংসার চালাই। সিপিএম এর আমল থেকেও কিছু দেয়নি, আর হচ্ছে এই যে তৃণমূল এসেছে তারাও কিছু দেয়নি না। আমরা এই ভাঙা ঘরটায় ভিতরে একবারে ভাঙা তিরপল দিয়ে রয়েছি, ওই দিকটায় এই দিকটায় কোনো রকমে একটু ঘিরেছি। তো আমরা এরকম করেই সংসার চালাচ্ছি। তো আশা করি নতুন সরকার আসছে, আমরা কিছু আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনাদের পাশে আমরাও আছি আর আপনারাও আমাদের পাশে থাকবেন, এইটুকু অনুরোধ चाहते कि नई सरकार आए, हम लोग की सुख दुख बांटे। नहीं, हम अवश्य बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ मोदी जी ने सभी के लिए घर दिया है, हाँ हर परिवार को अपना घर होना चाहिए। हाँ आपको अवश्य मिलेंगे। आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलेंगे और आपको परिवार के लिए अनाज भी मिलेंगे। हाँ ये मोदी जी ने सभी जगह पे दिया। তো আমরা এইটুকুনি অনুরোধ করছি, যেমন একটু সবাই সাহায্য করে। আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ জি আচ্ছা আমাদের সুখ দুঃখের কথা জানতে, হ্যাঁ হ্যাঁ এবং কেন্দ্র থেকে মোদী যে টাকা পাঠাচ্ছে আবাস যোজনার জন্য দুর্নীতি হচ্ছে। তো আমরা চাইবো প্রকৃত গরিব যারা তাদের বাড়ি আগে দরকার তারা পাক, বড় লোকরা পেয়ে যাচ্ছে টাকার হ্যাঁ বিনিময়ে। হ্যাঁ এইটাই এইটা বন্ধ হবে এবং কৃষক সম্মান নিধি যেটা মোদীজির স্বপ্নের প্রকল্প, হ্যাঁ সারা ভারতবর্ষের গরিব কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে, কিন্তু আপনারা পশ্চিমবঙ্গ পাচ্ছেন না, একদম কারণ মমতা কিচ্ছু ব্যানার্জি পাইনি, একদম আপনাদের নাম আর অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেন। জব কার্ডের বই শুনলেন আমাদেরকে দিচ্ছেন চট করে। কৃষকদেরকে সম্মান জানানোর জন্য আজকে মোদীজি যদি বলি যে একটা ভাঙা ঘর আমার দিকে ঘর দিন, বলবে অমুক লোকের কাছে যান, আবার সেই লোক বলবে তার কাছে যান। এরকম করে করে একটা তিরপলও মাগলে দেয় না, একটা বাড়ি মাগলেও দেয় না। একবার সিপিএম এর আমল থেকে তৃণমূল আসলে আবার নতুন সরকার আসতে চাইছে, আপনাদের দিকেই মানে আমরা একটু চাই যে যেমন সবাইকে সাহায্য করে। सबसे तो मैंने पहले स्टार्ट करूंगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कृषक सम्मान अभियान के अंतर्गत कई कृषक के घर पे गया, कृषक को मिला, कई गरीब परिवार को भी मिला। राज्य के 40,000 विलेज में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कृषक सम्मान अभियान चलाया जा रहा है और एक मुट्ठी अनाज लेके उसका सहयोग हम ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि देश बंगाल की जनता ने और बंगाल के कृषकों ने इस अभियान को सक्सेस बनाया है।
और इस अभियान में जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने केवल एक मुट्ठी अनाज ही नहीं दिया है, लेकिन कृषि की ताकत विशेष ताकत होती है, ताकत का समर्थन भी हमें मिला है। एक कृषकों का समर्थन में मिलने का रीजन ये है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सारे देश में सालाना 6,000 रुपीज़ किसान के अकाउंट में डाला जाता है। लेकिन बंगाल सरकार ने यहाँ के किसानों की सूची सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देके ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं किया, इसलिए कृषकों को बहुत नुकसान हुआ है। वो और न्याय अन्याय के स्लोगन को भी स्वीकार रहा है और अभी हम अन्याय नहीं सहेंगे ये नारा के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा, मोदी जी ने 2014 में जब ओथ लिया था तब कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी, और इस बात को चरितार्थ करने के लिए सारे देश में गरीबों को अपना घर दिया जा रहा है। गरीब के घर में बिजली जले इसलिए एलईडी बल्ब दिया जा रहा है। गरीब के घर में चूल्हा जले और कोई बहनों को लकड़ी से चूल्हा जलाना ना पड़े और गैस का अधिकार केवल एक वर्ग को ही हो और गरीब को उसकी सुविधा ना मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर था। उसमें से बाहर निकाल के 14 करोड़ लोगों के परिवार में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। गरीब लोग के यहाँ जो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार का चलाना मुश्किल हो जाता है और उसका इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। इसी स्थिति में मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सारे देश में 10 करोड़ परिवार को, 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दिया है। उसके घर में 5 लाख रुपीस तक खर्च बीमारी के लिए, इलाज के लिए हो जाए, ट्रीटमेंट के लिए हो जाए, तो भारत सरकार ये इलाज का खर्च बियर करेगी। लेकिन बंगाल गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके गरीबों के साथ अनजस्टिस कर रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। चुनाव आता है, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते वो सरकार बनाते हैं, लेकिन एक बार सरकार बनाने के बाद लोगों का हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। फेडरल डेमोक्रेसी को मजबूत करने की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो इस धरती से आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये धरती हमारे क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस धरती पर अन्याय हो रहा है और यहाँ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में राज्य की जनता ने मन बना लिया है, प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और अन्याय सहने की तैयारी में नहीं है, और मोदी जी को समर्थन देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ अगले दिनों में चौकस बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। Next, sir, I am sorry to interrupt you. Since the British period, there is the proposal given by different political party. Our area is river and there are many rivers, and it is occasionally flooded. Therefore, there is a master plan proposed by the different authorities of the government, both state government and central government, and during elections, different political parties and leaders and candidates come and they raise the issue that if we win, we will implement the master plan, and for that a huge amount of money is needed, but still now there is no master plan, and we expect what your party have taken the motto as to the implementation of the master plan if they can win the election. 100% डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान का हमारी सरकार बनेगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। हमारा पक्का यहाँ की जनता को वादा है कि हर संभव में, हर स्थिति में मेरी सरकार ये प्रदेश की ज़रूरियात को पूरी करने में, आप देख सकते हैं कई राज्यों में जहाँ बीजेपी रूल गवर्नमेंट है वहाँ कैसे बदल हुआ है। आप माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, आप गुजरात में जाके देखो। यहाँ मैं एक परिवार में गया था अनुपदा, उस परिवार वो गुजरात में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ है यहाँ नहीं है। मैंने कहा वहाँ भी मोदी देते हैं, यहाँ भी मोदी देते हैं, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है।
सवाल इतना ही। We are enriched from the money from Gujarat. यस गुड। Sir, what problems did you face whenever you visited some villages, some villagers in West Bengal? What problems you faced by the villagers? It's a local issues, so I don't understand. I give you reply, but I did not understand about the proper issues, so I explain you. It's not good. मैं विषय के संदर्भ में जानता नहीं हूँ और मैं बोलूँ तो ठीक है। आप जैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं? प्रॉब्लम गरीबी बहुत है या पॉलिटिकल सिचुएशन? You want to know about what situations of I would like to know the villagers. Some villagers pointed out that some problems to you. गाँव वालों ने Some problems. Oh, yeah, okay. I understood. You want to say that what's in my visit to poor peoples and what reply they expect to us. It's expectation only. Is it that they expect? Please give me our justice. Livelihood, it's our right. Government schemes implementation, it's duty of government, but not reach to poor peoples. So they think that why we have not get to our right. I tell him that our government will form. We assured you that we support and we implement to last peoples of Bengal that get hit right. You may ask question in हिंदी बोलना है, हिंदी बोलना है। Hindi. हिंदी तो बोलो। Hindi. सत्तरा आगे जिज्ञासा करबे? Sir, another question. I am sorry that I am asking you again and again. What is your ideological motto concerning our area? You know, our state was ruled by for more than 35 years by the Communist Party, and our heart was glued to Moscow, not to Delhi. Not to And Delhi, you yes. know the problem. And that is the main fundamental problem. We are neither leftist nor rightist, but opportunist. You have to give us the assurance that in our area, your lofty ideology of BJP will be implemented, not mere vote politics and the hunger of political power. देखो, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी, इट्स वन थिंग. Its heart is not here. Its heart in Moscow and other communist, because its vision or its ideology, it's every communist and every communist community, it's a brotherhood relationship. They don't trust about nation. ये राष्ट्र की सीमाओं से उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कम्युनिज्म से लेना देना है. और कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज के दिन में आइडियोलॉजी रही नहीं है, वो केवल एक परिवार के प्रति लॉयल हो चुके हैं. और जब रीजनल पार्टी की बात आती है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसको पहले पावर ने, सत्ता के लिए ही रीजनल पार्टी चलती है, और सत्ता के लिए ही, जैसा यहाँ सत्ता के लिए जो सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन करना पड़ा तो उन्होंने कर दिया. इट्स नॉट गुड. समाज को बांटना पड़ा तो यहाँ बांट दिया. उसको ऐसा लगा कि मुझे सत्ता चलाने के लिए ये करने की आवश्यकता है तो उन्होंने किया. मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी और उसके आधार पर हम बंगाल को एक सुनहरा बंगाल बनाना चाहते हैं, ये आइडियोलॉजी है. हमारी आइडियोलॉजी की प्रेरणा हमें मिलती है दीनदयाल उपाध्याय जी से. दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो अंत्योदय के आधार पर राष्ट्र निर्माण करेंगे, यानी कि देश के लास्ट लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार मेरी है और मेरे लिए कुछ कर रही है, और उसके आधार पर राष्ट्र निर्माण. हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी का मूल सूत्र है नेशन फर्स्ट, देश पहला, दल बाद में, और हमको स्वयं को तीसरे स्थान पर मानते. इसलिए आपने देखा होगा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, बंगाल के लिए काम कर रहे हैं, तो हम स्वयं को भूल गए कि हमारे पर क्या होगा, बंगाल के हमारे कार्यकर्ता पर क्या होगा, उसके परिवार को क्या झेलना पड़ेगा. जो भी होना है हो, लेकिन हो सुनहरा बंगाल के लिए काम करता रहा. उसमें हमारे 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता की हत्या हो गई, लेकिन भी
क्योंकि हमारा लक्ष्य पावर नहीं है, केवल सत्ता हमारे लिए साधन है। जब हमारे यहाँ सत्ता आती है, हम रूल्स में आते हैं, तो हम सत्ता भोगी लोग नहीं है भाई। हमने एक वोट से क्या हम नहीं सेट कर सकते थे? वाजपेयी जी ने एक वोट से सरकार गवा दी थी, क्योंकि हम आइडियोलॉजी पर चलते थे कि भाई हम लोगों का वोट खरीदेंगे नहीं। But sir, now great exodus have taken place from the Trinamool party and the Communist party to gather under the shelter of the BJP party, and there is a conflict between the old workers and the new workers, new entrants, and I think that that would be dent the image of the BJP party in future in terms of election perspective. परिवार बड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा परिवार है, हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहे ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी क्लैरिटी ये है कि उसको आइडियोलॉजी के अनुसार काम करना है। और जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहेंगे वो टिकेंगे, आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे वो नहीं टिक पाएंगे। बहुत क्लैरिटी है उसमें, हमारा कार्यकर्ता के बीच में कोई मतभेद नहीं है, वो सब उसका स्वीकार कर रहा है। वाई दासपुर, आपने ये जो आपका गृह संपर्क अभियान है, दासपुर के ही क्यों चुना है आपने? मैंने खटाल लोकसभा सीट में दासपुर आता है, तो दासपुर में मेरे कार्यकर्ता ने आज के दिन में कार्यक्रम बनाए रखे थे। ऐसे सारे प्रांत में कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यकर्ता ने कार्य योजना बनाई कि आपको यहाँ आना है, तो मैं यहाँ आ गया। अगले वीक में सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे हम हर यहाँ ही आ जाते हैं और आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो कार्यकर्ता, हम तो कार्यकर्ता है पहले भारतीय जनता पार्टी का। हमें जो काम पार्टी बताती है वहाँ जाके हम काम करते हैं। आज मुझे काम बताया गया कि आपको मुट्ठी अनाज लेने के लिए किस कृषक के यहाँ जाना है, तो मैं वहाँ जाता था। Sir, the ruling party of West Bengal has complained that the federal democracy is weakening by the center. Federal democracy is weakening by the center. Who is responsible? देखो, कोई भी कहे फेडरल डेमोक्रेसी को सम्मान करना मतलब सरकार होती रहती है अलग अलग, भाई जनता का मैंडेट है, उसमें किसी के साथ ये देश में ऐसी प्रथा नहीं है। हमारी सक्सेसफुल फेडरल डेमोक्रेसी है और हम मानते हैं उसको। इसलिए हम गुजरात में थे, हम 30 ईयर से रूलिंग में है, सेंट्रल में तो कांग्रेस की सरकार थी, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। हमारे मनोज जी पहले कांग्रेस में थे, मनोज जी गुजरात में बहुत बड़ी यात्रा करने के लिए उस वक्त कांग्रेस ने 150 साल कांग्रेस का हुआ था शायद, 75 ईयर ऑफ दांडी यात्रा का 75 ईयर्स हुआ था उस वक्त। वो वहाँ यात्रा के लिए आए थे, उन्होंने देखा होगा। हमारी सरकार ने कांग्रेस निकाल रही थी, लेकिन एक नेशनल पार्टी है और उसकी यात्रा है, तो सरकार ने सब सहयोग किया उसको। हम कभी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करना नहीं चाहते। जब कांग्रेस थी सेंट्रल में और स्टेट में हम थे, और है आज के दिन में भी और भविष्य में भी हम रहने वाले हैं अभी, तो हमने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हो। सेंट्रल से प्रधानमंत्री आता है तो हमारे मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोटोकॉल में कोई कचाश रखी हो, वो स्वयं एयरपोर्ट पर नहीं गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फेडरल डेमोक्रेसी का सम्मान माना जाता है। लेकिन आज फेडरल डेमोक्रेसी को कौन वीक कर रहा है? क्यों आपने किसान सम्मान निधि का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं किया? भाई हमने तो किसान के लिए, देश के लिए किया है। सरकार अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आए तब आप अपनी विचारधारा जनता के बीच में रखें, हम अपनी विचारधारा, हमारी खामियां है आप जनता के बीच में लेके जाओ, आपकी खामियां हम जनता के बीच में लेके जाए, ये होता है। लेकिन चुनाव के आपकी विचारधारा से कोई अलग बात करे, उसका मर्डर हो जाए और पार्टी को कोई कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिले, भारत सरकार की योजना का कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, यही सीबीआई है। मोदी जी 2 दिन उसके सामने, सीबीआई के सामने सारे दिन बैठ के, राज्य के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो चीफ मिनिस्टर थे, वो बोल सकते थे कि मैं सीबीआई स्टेट में नहीं आने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा। कौन फेडरल स्ट्रक्चर में मानते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। सीबीआई, मोदी जी सच थे, सामने 2 बार बैठा, सीबीआई ने जो जो पूछताछ करनी थी विस्तार से उसकी पूछताछ की, विषय खत्म हुआ। ऐसा यहाँ सभी सरकारी एजेंसी को आप मना कर देते हो। भारत सरकार की कोई योजना और भारत सरकार की कोई
कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देना चाहते हो, ये डेमोक्रेसी को के लिए ठीक नहीं है। फेडरल डेमोक्रेसी उससे मजबूत नहीं होती, उससे यहाँ से वीक हो रही है, सेंट्रल से नहीं। धन्यवाद। ঘাটাল মহকুমার সমস্ত খবর সঙ্গে সঙ্গে পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।